Hello, am I audible? Okay, is my screen visible now? So first सब लोग अटेंडेंस लगा लो. Okay. So I think we'll start. Before starting lesson number 2, we'll take a quick revision, okay? जो हम लोग ने last lecture में किया था. Okay, still someone are writing their attendance. Yeah. So last lecture में हम लोग ने numbers, greetings, फिर nationalities ये सब चीज पढ़े थे, correct? So we'll start with numbers. So 42 को कैसे बोलेंगे? 42, 42. Anyone? 42. You can switch on your mic. First type yes, then switch on your mic. If anyone has the answer of it. Yeah. Aditi, you can switch on your mic. Hello, Yeah, you're audible. Yonjuni. Correct. Yonjuni. Yonjuni. Am I perfectly audible? Hello? Yeah. Okay. Now Deepika, tell me 67. Japanese में 67 कैसे बोलेंगे? 67. Sir, Yeah, you're Roku, audible. Roku Shichi. Correct. Roku Shichi. Okay. So I guess you know the numbers. तभी भी मैं 0 से 10 वापस बोलता हूँ. 0 is Rei और 0. Then Ichi, Ni, San, Shi और Yon, Go, Roku, Shichi और Nana, Hachi, Kyu, Ju. ओके. अब गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग. Okay, now I'll pick not good. I am saying good morning. Correct. Ohayo gozaimasu. Then what about good evening? अभी आप क्या ग्रीटिंग दोगे? कोनबावा. करेक्ट. कोनबावा. Yeah, Rokuju Nana is also correct. Rokuju Shichi is also correct. No problem in that. फिर थैंक यू को क्या बोलोगे? Okay, 1 minute. I'll just pick someone in random. Omkar, are you there? Omkar? Yes, sir. Yeah. Can you say thank you in Japanese language? Yes, sir. Arigato gozaimasu. Correct. And what about welcome? Please, no one answer us. Do itashimashite. Correct. So it's do, not do. Okay. Do Okay, sir. itashimashite. बाकी का correct था. Right. Sorry. I did not know I was muted. Yeah. Good afternoon को क्या बोलते हैं? Good afternoon, good day. Konnichiwa. Correct. इवन आप कॉन्निचिवा कब यूज कर सकते हो पता है? जब आप कभी फॉर्मली आप कभी ग्रीटिंग दे रहे रहोगे तभी भी कॉन्निचिवा बोल सकते हैं. ओके. सो कॉन्निचिवा.
and then go on with your speech or anything you want to say. So हो गया कॉग्निटिव, करेक्ट। मैंने जो पहले बोला था वो कुछ सुनाई दिया था शायद नहीं। गुड आफ्टरनून के पहले मैं जो बोला था वो कुछ वेलकम और थैंक यू का हो गया था, करेक्ट? ओके। ओमकार ने जो वेलकम बोला वो सब लोग ने सुना था? या ओके, सो फाइन। उसके बाद में मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। ओके, सो विल स्टार्ट लेक्चर 2 और उसको हम लोग जापानीज में बोलोगे जुग्योनी। ओके, होनोवा जुग्योनी। दिस इज लेक्चर 2 और लेसन 2। ओके, और रिविजन को फुकुशु बोलते हैं। ओके, सो फुकुशु और जुग्यो ये याद रखो। ओके, सो हाजिमे माशो मतलब लेट्स बिगिन। सो हाजिमे माशो। So 1 minute. I'll do this full screen. Yeah. Is it visible to everyone? Yes. Okay. So now we'll do self introduction. Okay. So self introduction आप कभी भी किससे मिलोगे तो आपको ये फ्रेजेस बोलना है और ये फ्रेजेस मोस्टली उनमें फिक्स रहते हैं। ओके, तो अगर आप किससे भी पहले बार मिल रहे रहोगे तो आप हमेशा फर्स्ट वाला बोलोगे। ओके, दिस वन हाजी मास्ते। Okay. So when you meet someone for the first time, then you say Hajime then your name, this, those Yoroshiku onegaishimasu. Okay, so for me it would be Hajime Sankarupu des, those Yoroshiku onegaishimasu. Okay, so now we'll do the meaning word by word. Hajime is in the beginning, ऐसे Hajime का वो मतलब रहता है in the beginning। फिर संकरूपु मतलब मेरा नाम, देश मतलब है। सो फर्स्टली माय नेम इज संकल्प। ओके, आप कभी भी किससे पहले बार इंट्रोडक्शन कर रहे होगे, आप पहले बार इंट्रोड्यूस हो रहे होगे तो आपको जापान में हमेशा पहली बार हाजमे मास्टे बोलना रहता है। ओके, सो whenever you are meeting someone for the first time, then you have to start your introduction by hajime mashite. Okay, hajime mashite, hajime mashite, sankarupu desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Okay, so hajime mashite मतलब इसका फर्स्ट सेंटेंस का मतलब हुआ फर्स्टली माय नेम इज संकल्प, और इन द स्टार्टिंग ऐसे भी बोल सकते हैं इन द sorry, yeah, firstly my name is Sankalp. That would be more appropriate translation of it. Then those Yoroshiku onegaishimasu is generally उसका ट्रांसलेशन होता है प्लीज कोऑपरेट विथ मी, बट उसका एक्चुअली वो जापानीज फ्रेज का एक्चुअल ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ ये काइंड ऑफ मिलता है इसलिए उसको प्लीज कोऑपरेट विथ मी बोलते हैं। ओके, सो इसका जनरल मीनिंग वही रहता है कि दोज योरोशिको ओनेगाइशिमास का रहता है कि इसके बाद मेरे से अच्छे से बिहेव करो, या इसके बाद आज के बाद मेरे से अच्छे से रहो। ओके, या जनरली प्लीज कोऑपरेट विथ मी। ओके, या नाइस टू मीट ऐसे भी हो सकता है, but its more definite meaning is please cooperate with me. Okay, so hajime mashite, sankarupu desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Okay, dozo yoroshiku onegaishimasu. Okay, so ये हो गया फॉर्मल इंट्रोडक्शन, और अगर आप किससे पहले बार मिल रहे रहोगे तो आप ये इंट्रोडक्शन दे। ओके, सो इज एनीवन इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग द फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो अभी मैं बोला वो जापानीज में? दीपिका, या you can unmute yourself. Sir, Yes. Hajime Mashite, Deepika desu, Dojo Oroshiko Onegai Shimasu. Sorry, yeah, correct. But ये ओरोशिकु नहीं है, यो है। दोजो योरोशिकु, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। और मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि वो लोग मोस्टली शिमासु नहीं शिमास पढ़ते हैं। ओके, सो डोंट रीड इट एज शिमासु, रीड इट एज शिमास। पर वो लिखने में वो सु लगाते हैं, बट इट इज रेड एज शिमास। ओके, करेक्ट। सो वापस मैं पढ़ता हूँ। हाजमे मास्ते, सांकारुपु देसु, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। ओके,
और इफ आपको कोई ऐसा जनरल इंट्रोडक्शन देने कि मेरा नाम संकल्प है या मैं संकल्प हूँ, तो उसका ऐसा होगा, वाताशी वा संकल्प देस। ठीक, वाताशी वा संकल्प देस। वाताशी वा मतलब मैं, संकल्प मतलब मैं संकल्प, देस मतलब है कि मैं संकल्प हूँ। वाताशी वा संकल्प देस, आई एम संकल्प। वैसे ही उसका अगर आप बोलो, आपको बोलना रहेगा मेरा नाम संकल्प है, तो आप बोलोगे वाताशी नो ओनामाए वा संकल्प देस। वाताशी नो ओनामाए वा संकल्प देस। वाताशी नो मतलब मेरा, ओनामाए वा मतलब नाम, संकल्प मतलब संकल्प, और देस मतलब है। तो अभी कोई मेरे को मुझको बताएगा इधर मैं ये सांकारुपु काताकाना में क्यों लिखा हूँ? कि why I have written my name in katakana? Just write it in the chat box. या करेक्ट। तो संकल्प मेरा नाम जापान ओरिजिनेटेड नहीं है, करेक्ट? So I'll write it in katakana. Okay. So watashi wa sankarpu desu, नहीं तो वाताशी नो ओनामाए वा संकल्प देस। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। सो ये ओम है शायद ना, करेक्ट? ओम, कैन यू Yes. अनम्यूट योरसेल्फ? या। सो आपको बोलना है मेरा नाम समथिंग समथिंग है, तो आप क्या बोलोगे? Watashi wa um, desu. वापस बोलो। Watashi wa desu. हाँ करेक्ट, बट वाताशिवा मत करो, ओके? डोंट एलोंगेट इट, वाताशिवा ओम दिस, करेक्ट। यस यस, इट्स ओके। या। सो और दूसरा है वाताशी नो नामाए वा संकल्प दिस। Okay, so I'll pick anyone in random now. 1 minute. Yeah. Maitreya, can you unmute yourself? Hello? Okay. I guess she's not in the meeting. Can Aditi unmute herself? Aditi Pilankar. Guys, unmute yourself. सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है आपको. Don't be shy. Hello, am I audible? Okay. Rahul, can you unmute yourself? वाताशी वा राहुल देस. करेक्ट, बट अभी आपको बोलना रहेगा आपका नाम ये है, तो आप क्या बोलोगे? वाताशी 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 नो ओनामा वा राहुल देस. करेक्ट, वाताशी नो ओनामाए वा राहुल देस, करेक्ट। ओके, सो फिर हम लोग ने दो इंट्रोडक्शन सीखे। फर्स्ट वाला है जो हम लोग कभी भी, आप किससे भी पहले बार मिल रहे रहोगे नहीं तो, द फर्स्ट वन इज द फॉर्मल इंट्रोडक्शन विच इज हाजमे मास्ते, संकल्प देस, दोजो योरोशिको ओनेगाइशिमास। और दूसरा है जो जनरल इंट्रोडक्शन है, ओके, वाताशी वा संकल्प देस, नहीं तो वाताशी नो ओनामाए वा संकल्प देस। ओके, सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको ऐसा बोलना रहेगा कि मेरा नाम संकल्प है, मैं स्टूडेंट हूँ, नहीं तो मेरा नाम संकल्प है, मैं मुंबई में रहता हूँ। ओके, सो फिर दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। वाताशी वा गाकुसेई देसु। वाताशी वा गाकुसेई देसु। वाताशी वा मतलब मैं, गाकुसेई मतलब स्टूडेंट, देसु मतलब हूँ।
मैं स्टूडेंट हूँ. ओके, आई एम अ स्टूडेंट. वाताशी वा गाकुसेई desu. ओके, देन वाताशी वा इंडोजिन desu. वाताशी वा इंडोजिन desu. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राइट इट इन द चैट बॉक्स. या आई एम इंडियन या मैं इंडियन. करेक्ट. ओके, सो ये हो गया वाताशी वा इंडोजिन desu, मतलब मैं इंडियन हूँ. आई एम इंडियन. एंड द लास्ट वन इज वाताशी वा मुंबई ni sunde imasu. वाताशी वा मुंबई ni sunde imasu. वाताशी वा मतलब मैं, मुंबई मतलब मुंबई, मुंबई नी मतलब मुंबई में, हाँ. नी मतलब मैं, सुंदे मतलब रहता हूँ, और इमास मतलब हूँ. ओके, वाताशी वा मुंबई नी सुंदे इमास. आई लिव इन मुंबई. तो अगर कोई दिल्ली में रहता रहेगा तो बोलेगा वाताशी वा दिल्ली नी सुंदे इमास. कोई कोल्हापुर में रहता रहेगा बोलेगा वाताशी वा कोल्हापुर नी सुंदे इमास. ओके, तो 3 सेंटेंसेस हुए नए नए. वाताशी वा गाकुसेई desu, वाताशी वा इंडोजिन desu, वाताशी वा मुंबई नी सुंदे इमास. तो अभी मैं संकल्प को अगर किससे इंट्रोडक्शन कर रहा रहूँगा तो मैं बोलूँगा हाजिमास्ते, संकारुपु desu, दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु, वाताशी वा गाकुसेई desu, वाताशी वा इंडोजिन desu, वाताशी वा मुंबई नी सुंदे इमासु. ओके, सो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन. अगर आपको पैरा में लिखने बोला, नहीं तो 1 या 2 लाइन से ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन करने बोला, तो ये उसका इंट्रोडक्शन होगा. ओके, सो can anyone unmute themselves? First write yes in the chat box. Whoever is ready to unmute. दीपिका को छोड़ के कोई? दीपिका ने बहुत बार आंसर किया है. Anyone else? Yeah, you can unmute yourself, Aditi. Hello. Yes, you're audible. Hi. Read the first sentence. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa indojin desu. Watashi wa Mumbai ni sunde imasu. Yeah, correct. So इधर भी इमासु नहीं आएगा, इमास आएगा, बट बाकी सब करेक्ट था. करेक्ट. सो वेल डन. सो फर्स्ट इज वाताशी वा गाकुसेई desu, वाताशी वा इंडोजिन desu, एंड वाताशी वा मुंबई नी सुंदे इमासु. सो ये हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन और जनरल इंट्रोडक्शन. So we'll move on to the next. So next is days of the week. Okay. So obviously there are 7 days on the week. So हम लोग स्टार्टिंग से कौन सा डे क्या है वो पढ़ेंगे. बट फर्स्ट टेल मी, ये मैंने जस्ट स्लैश के पहले लिखा है वो कौन सी स्क्रिप्ट है? ये हिरागाना. करेक्ट. और स्लैश के बाद में लिखा है वो कौन सा स्क्रिप्ट है? कांजी. करेक्ट. नॉट कांगी, कांजी. इट्स नॉट काताकाना. कांजी with J. Yeah. Okay. So Getsuyobi मतलब मंडे. Getsuyobi. Okay. Then Kayobi मतलब ट्यूसडे. Kayobi मतलब ट्यूसडे. फिर वेडनेसडे को बोलते हैं सुइयोबी. सुइयोबी. Okay. फिर थर्सडे को बोलते हैं मोकुयोबी. मोकुयोबी. फिर फ्राइडे को बोलते हैं केनयोबी. केनयोबी. फिर सैटरडे को बोलते हैं दोयोबी.
दोयोबी, और संडे को बोलते हैं निचियोबी, निचियोबी। ओके, सो इधर सबके इधर योबी टाइप ऑफ सफिक्स है। ओके, सो फिर देखो, इवन आप काटाकाना में देखोगे तो सबके पीछे सेम ये है, करेक्ट, सेम कैरेक्टर्स है। ओके, तो ये सेकंड कैरेक्टर दिख रहा है आपको को, वो जरा सा कॉम्प्लेक्स है वो। कैन आई जूम इन? आई कैन जूम इन। सो यू कैन सी, देखो ये है एक कैरेक्टर जिसमें मैं मेरा एरो घुमा रहा हूँ। ओके, तो वो है यो का kanji। ओके, उसका रीडिंग है यो, और फिर ये शेल्फ जैसे दिख रहा है वो है ही का kanji, ये मतलब डे। ओके, सो ये जो शेल्फ जैसा दिख रहा है वो है ही का kanji, और उसका रीडिंग रहता है ही, नी, निची, बी, ऐसा उसके बहुत सारे रीडिंग्स रहते हैं। ओके, तो फिर ये फर्स्ट कैरेक्टर है, इसका रीडिंग है गेत्सु। ओके, सो गेत्सु प्लस यो प्लस बी, गेत्सु यो बी। वैसे ही इधर ये दिख रहा है ना, वो फायर का kanji है, उसको, उसका रीडिंग है का। ओके, का, फिर ये होगा का यो बी। फिर नेक्स्ट है ये वाला kanji। ओके, दिस इज, ये है पानी का kanji, वाटर का, मिजू का। ओके, उसका रीडिंग मिजू भी रहता है, पर इधर इसका मीनिंग नहीं, सॉरी, इसका रीडिंग मिजू भी है, बट इधर इसका रीडिंग है सुई। ओके, सो फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग सुई प्लस यो प्लस बी, सुई यो बी। सो वैसे ही हर एक इसका, और ये है जैसे कि इसका है मोकुयोबी, फिर इसका है किन, के इसका रीडिंग है किन, इसका है दो, और फिर देखो मैंने बोला था कि इसका रीडिंग है नी, निची। ओके, सो फिर इधर इसलिए इधर दो दो ये है निची, अब सॉरी, अभी इसका इधर रीडिंग नीचे भी है और बी भी है। ओके, सो नीची यो बी इज संडे। सो ऐसे हम लोग कांजी पढ़ते हैं। सो विल स्टार्ट अगेन। या, ये फर्स्ट, इधर सबके सफिक्स है डे, करेक्ट, सो इसलिए सबके पीछे ही का कांजी, विच इज डे, ही का मीनिंग है डे। सो फर्स्ट इट्स गेत्सुयोबी, मंडे, खायोबी, ट्यूसडे, सुयोबी, वेडनेसडे, मोकुयोबी, थर्सडे, केनयोबी, फ्राइडे, दोयोबी, सैटरडे, निचयोबी, संडे। ओके, गेत्सुयोबी, खायोबी, सोयोबी, मोकुयोबी, केनयोबी, दोयोबी, निचयोबी, ये हो गए डेज ऑफ द वीक। और फिर ओके, राइट इन द चैट बॉक्स आज का दिन क्या है। व्हाट इज टुडे? हेलो, एम आई ऑडिबल? या सॉरी, या, मोकुयोबी, करेक्ट, मोकुयोबी। Yeah, in case if I'm not audible, please unmute yourself and tell me, okay? In case if I am not audible, anyone can unmute themselves and then tell me. Correct, Mokuyobi. Now, Sayuri, can you unmute yourself? Yes, sir. Yeah. Can you say the days of the week in Japanese from Okay. starting? Monday is Getsuyobi. Tuesday is Kayobi. Wednesday is Suiyobi. Thursday is Mokuyobi. Friday is Kinyobi. Saturday is Doyobi. And Sunday is Nichiyobi. Perfect, correct. Okay. Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, and Nichiyobi. Right. Okay, so these are the days of the week. Any confusion till now? Wakarimashita ka? Wakarimashita. Okay. So next is days. Okay. अभी ये है days. So उत्तुतोई मतलब
डे बिफोर यस्टरडे, ये मतलब परवा। किनो मतलब यस्टरडे, काल। क्यो मतलब टुडे, आज। आष्टा मतलब टुमॉरो, उद्या. आणि आसत्ते मतलब डे आफ्टर टुमॉरो, परवा. ओके, so ututui is day before yesterday. Okay, so you can say this correct. ये कांजी दिख रहा है आपको? सॉरी, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कांजी. ये है इची का कांजी. ओके, वन का कांजी. और ये है बिफोर का कांजी. ओके, और ये है डे का कांजी. करेक्ट. और इधर भी आपको बिफोर का कांजी दिखेगा और डे का कांजी दिखेगा. करेक्ट. ओके, सो डे बिफोर इज यस्टरडे. करेक्ट. आज के दिन के पहले क्या रहता है? यस्टरडे. डे बिफोर यस्टरडे, इसलिए किनो. फिर वन डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब परवा, इसलिए इधर वन है. फिर वैसे ही इधर आप आज तक के इधर ये रहता है, ये आगे का कांजी रहता है. सो दिन के आगे, आज के दिन के आगे क्या आता है? कल, इसलिए टुमारो, आष्टा. फिर ये इधर दिख रहा है एक बीच में अलग कांजी है, वो और एडिशन टू दैट ऐसा रहता है. ओके, सो आष्टा के आगे और क्या रहता है? होता है डे आफ्टर टुमारो, इसलिए डे आफ्टर टुमारो. तो ये हो गया कांजी का रीडिंग्स. ठीक, तो ओतोतोई. करेक्ट, ओतोतोई इसका है ओतोतोई. फिर ओतोतोई मतलब डे बिफोर यस्टरडे. फिर किनो, यस्टरडे. फिर क्यो इज टुडे. आष्टा इज टुमारो. और असत्ते इज डे आफ्टर टुमारो. ओके, ओतोतोई, किनो, क्यो, आष्टा, असत्ते. ओके, तो अगर आपको किसको बोलना रहेगा कि हम लोग अब परसों मिलते हैं, ओके, विल मीट डे आफ्टर टुमारो, सो आप बोलोगे जा माता असत्ते. हम लोग ने ग्रीटिंग्स में देखो एक फ्रेज सीखा था, जा माता आष्टा. वैसे ही आष्टा के जगह पे असत्य लगा दिया तो हो जाएगा विल मीट डे आफ्टर टुमारो. ओके, मीट यू डे आफ्टर टुमारो, ऐसा. फिर हम लोग ये फ्रेज चेंज कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आंसर माय क्वेश्चंस. ओके, आष्टा मतलब आष्टा कौन सा दिन था? अष्टवा नान्योबी देश का मतलब, नान्योबी मतलब कौन सा दिन, और देश का मतलब था. सॉरी, देश का मतलब कौन सा दिन है. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. करेक्ट, किन्योबी. राइट. ओतोतोई नान्योबी देशता का. ओतोतोई नान्योबी देशता का. ओतोतोई कौन सा दिन था? ओतोतोई में कौन सा दिन था? ओके, विल सी ना. मुकुयोबी, सुयोबी, खाइयोबी. करेक्ट. देन क्योवा नान्योबी देशु का. क्योवा नान्योबी देशु का. सॉरी, क्योवा नान्योबी देशु का. मुकुयोबी. करेक्ट. असत्ते वा नान्योबी देशु का. असत्ते वा नान्योबी देशु का. असत्ते वा नान्योबी देशु का. करेक्ट, दो योबी. फिर किनोवा नान्योबी देशु का. किनोवा नान्योबी देशु का. सुयोबी. करेक्ट, वेडनेसडे. ओके, सो फिर अब मुझे बोलना रहेगा मुकुयोबी कब था, तो आप क्या बोलोगे? क्यों. करेक्ट. सो आप बोलोगे क्योवा मुकुयोबी देशु. क्योवा मुकुयोबी देशु. टुडे इज थर्सडे. ओके, वैसे आपको बोलना रहेगा कल वेडनेसडे था, तो आप बोलोगे किनोवा सुयोबी देशता. किनोवा सुयोबी देशता.
देस्ता मतलब था. Okay. Hai. Kyo wa mokuyobi desu. Correct. Okay. So wakarimashita ka? Any doubts till now? Wakarimashita ka? Wakarimashita. Okay. So next is months. Okay. So जापानीज मंथ का सिस्टम बहुत अच्छा है. ओके. इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो. सिर्फ उनके इधर हर एक मंथ को, जैसे कि जनवरी फर्स्ट मंथ, इसलिए इची और गात्सु. गात्सु इज मंथ. ओके. गात्सु इज मंथ. फर्स्ट मंथ जनवरी रहता है, इसलिए इची गात्सु. फिर सेकेंड मंथ फरवरी रहता है, इसलिए नी गात्सु. थर्ड मंथ मार्च, इसलिए सान गात्सु. फोर्थ इज अप्रैल, इसलिए शी गात्सु. ओके. और इधर यॉन गात्सु नहीं होगा, सिर्फ शी ही यूज कर सकते हैं. ओके. तो फिर मे है मतलब फिफ्थ मंथ, तो फिर हो जाएगा गो गात्सु. सिक्स्थ मंथ इज जून, इसलिए रोकू गात्सु. सेवेंथ मंथ इज जुलाई, इसलिए शिची गात्सु. एट्थ मंथ हची गात्सु. नाइन्थ मंथ कू गात्सु. 10th month जू गात्सु. 11th month जू इची गात्सु. 12th month जू नी गात्सु. ओके. तो सिर्फ इधर ध्यान देने की चीज इस अप्रैल, जुलाई और सितंबर है. ओके. अप्रैल में आप सिर्फ शी गात्सु यूज कर सकते हो. ओके. यॉन गात्सु यूज नहीं करना है. वैसे ही जुलाई में सिर्फ शिचिगात्सु यूज करना है. नानागात्सु यूज नहीं करना है. और सितंबर में देखो, 9 को हम लोग क्यू बोलते हैं, करेक्ट. बट इधर कू लिखा है, तो कू ही बोलना है, क्यों नहीं. कू गात्सु. ओके. सो इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, शीगात्सु, गोगात्सु, रोकुगात्सु, शिचिगात्सु, हाचिगात्सु, कुगात्सु, जुगात्सु, जू इचिगात्सु, जू नीगात्सु. ओके. सो वापस कांजी देखते हैं. ओके. जो कैन सी इधर वन लाइन है, तो ये है वन का कांजी, और ये दिख रहा है वो है गात्सु का, नहीं तो मंथ का कांजी. ओके. सो 1 मंथ जनवरी, दूसरे इचिगात्सु. वैसे इधर 2 लाइन्स है, ये है नी का कांजी या नंबर 2 का कांजी, तो इसलिए सेकेंड मंथ, इसलिए वापस नीगात्सु. वैसे ही ये है सान का कांजी. फिर ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये है यॉन का कांजी, नहीं तो शी का कांजी. फिर ये है गो का कांजी, ये है रोकू का, ये है शिची का, ये है हची का. फिर ये है क्यू का, और ये है जू का. कि द क्रॉस वाला है, ये है जू. वैसे अभी जू इची इज 10+1, इसलिए 10 का और 1 का कांजी, और फिर गात्सु मतलब मंथ. वैसे ही फिर दिसंबर में है जू प्लस नी, 12th मंथ, जूनी गात्सु. ओके. या इचिगात्सु, नीगात्सु. इचिगात्सु मतलब जनवरी, नीगात्सु मतलब फरवरी, सांगात्सु मतलब मार्च, शीगात्सु मतलब अप्रैल, गोगात्सु मतलब मई, रोकुगात्सु मतलब जून, शिचिगात्सु मतलब जुलाई, हाचिगात्सु मतलब अगस्त, कुगात्सु मतलब सितंबर, जुगात्सु मतलब अक्टूबर, जू इचिगात्सु मतलब नवंबर, और जूनीगात्सु मतलब दिसंबर. ओके. वाकारिमाशिता का? वाकारिमाशिता का? वाकारिमाशिता. Okay. Nidhi, can you unmute yourself? Is Nidhi there? Okay. Omkar, can you unmute yourself? Hello? Yes, sir. Yeah. मंथ्स एक बार पढ़ो जापानीज में. इचिगात्सु जनवरी, नीगात्सु फरवरी, सनगात्सु मार्च, शीगात्सु अप्रैल, गोगात्सु मई, रोकुगात्सु जून, शिचिगात्सु जुलाई, हाचिगात्सु अगस्त,
Kugatsu September, Jugatsu October, Juichigatsu November, Junigatsu December. करेक्ट, परफेक्ट. या सो ये हो गए मंथ्स. ओके, इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, शीगात्सु, गोगात्सु, रोकुगात्सु, शिचिगात्सु, हाचिगात्सु, कुगात्सु, जुगात्सु, जू इचिगात्सु और जू नीगात्सु. ओके, सो विल टेक अ क्विज अपॉन दिस क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है. अभी कौन सा मंथ चल रहा है? Which month is going on now? Write it in the chat box, please. रोकुगात्सु, करेक्ट. देन क्रिसमस कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है? चैट बॉक्स नहीं खाइते को दसाई, मतलब चैट बॉक्स में लिखो प्लीज. जूनीगात्सु, करेक्ट. देन व्हाट अबाउट होली? होली कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है? सानगात्सु, करेक्ट, मार्च. देन दिवाली, in which month is Diwali celebrated generally? Diwali. It's not celebrated in December, correct. October, which is Jugatsu. Yeah. फिर समर वेकेशंस कौन से महीने में रहते हैं? समर वेकेशंस को जापानीज में नात्सुयासुमे, सॉरी, हाँ या नात्सुयासुमे बोलते हैं. ओके, सो नात्सुयासुमे वा नानगात्सु desu ka? Gogatsu, correct. Okay, so I guess you're quite good in months. So we'll do the next one. Sorry, next slide. Seasons. Okay, so जापान में 4 मेन सीजन्स रहते हैं. फर्स्ट है हारू विच इज स्प्रिंग, फिर नात्सु विच इज समर और रेन, फिर आकी विच इज ऑटम, फूयू विच इज विंटर. ओके, सो ये फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो आप, ये है उनका हारू सीजन. ओके, चेरी ब्लॉसम्स आर मोस्टली डन इन हारू सीजन, स्प्रिंग सीजन. ओके, और उनके इधर हारू सीजन बहुत ऐसा ब्यूटीफुल रहता है क्योंकि चेरी ब्लॉसम्स आर ब्यूटीफुल. तो उनका हारू सीजन बहुत ब्यूटीफुल रहता है. ओके, देन यू कैन सी दिस पिक्चर हियर, ग्रीन करेक्ट. सो दिस इज नात्सुयासुमे, सॉरी नात्सुयासुमे नॉट नात्सु सीजन. ओके, विच इज समर और रेन. तो उनके इधर रेन ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है क्योंकि उनके इधर बारिश कभी भी गिर जाता है. कौन से भी सीजन में उनके इधर बारिश रहता है. ओके, बट जनरली समर के टाइम पे उनके इधर ज़्यादा बारिश रहता है, इसलिए नात्सु में इधर मैंने समर/रेन लिखा है. ओके, इन सीजन इन नात्सु में रेन भी होता है, समर भी होता है. सो और उनके इधर समर रहता है वो बहुत हार्श रहता है. ओके, मतलब बहुत गर्मी, मुंबई का जैसे गर्मी रहता है वैसे उनके इधर रहता है, बट उनके इधर इससे भी ज़्यादा रहता है. ओके, सो नात्सु इज वेरी हॉट, वेरी एक्सट्रीम देयर. फिर ये दिख रहा है आकी. आकी इज ऑटम. तो ये रेड ट्रीज दिख रहा है आपको, रेड ऑरेंज ट्रीज. तो ये उनका आकी का स्पेशलिटी है. ठीक, तो एवरीथिंग एट दैट टाइम इज आइदर रेड और ऑरेंज एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, इफ यू सी इट इन यूट्यूब और अगर आप गूगल किए तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनरीज दिख जाएंगे जापान के इस सीजन में. So Haru and Aki is very famous at that time and mostly tourists go between this period only क्योंकि इनके इधर ये टाइम बहुत ब्यूटीफुल और बहुत प्लेजेंट रहता है. अनलाइक नात्सु में बहुत गर्म होता है, इसलिए नात्सु में जनरली ज़्यादा कोई जाते नहीं. एंड द नेक्स्ट हियर यू कैन सी इज फूयू विच इज विंटर. फूयू यासुमी भी रहता है विच इज विंटर वेकेशन. तो इधर उनके इधर विंटर भी कभी कभी बहुत एक्सट्रीम होता है. ओके, तो इनफैक्ट जापान में सब कुछ एक्सट्रीम होता है. इन सुनामी भी बहुत उनके इधर आता है. फिर ये
earthquake which is jishin in Japanese, वो भी उनके इधर बहुत रहता है. Okay, so यार these are some of the facts. Okay, so ये है फूयू which is winter. फूयू में बहुत सारा स्नो गिरता है और स्नो को युकी बोलते हैं. Okay, so ये है winter. So these are the 4 seasons, which is first is haru, natsu, aki और फूल. So आप इधर देखोगे ये कांजी, करेक्ट. कैन यू सी द कांजी स्प्रिंग के बाजू का? ये है हारू का कांजी, नहीं तो स्प्रिंग का कांजी. या यू कैन राइट इट इन द नोटबुक इफ यू वांट. ओके, सो दिस इज स्प्रिंग का कांजी, ये है वो. फिर ये है नात्सुई, मतलब समर का कांजी. ओके, और फिर ये दिख रहा है, ये है ऑटम का कांजी. तो अब देखोगे इधर वापस फायर है, फायर का कांजी भी इसमें है छोटा सा इन द राइट साइड. ओके, सो ये 2 कांजीज का मिक्सचर. एंड द लास्ट इज ये है फूयू का कांजी विच इज विंटर का कांजी. ओके, सॉरी. सो these are the 4 seasons: haru, natsu, aki and fuyu. Okay, so now one minute. Yeah, spring season को क्या बोलते हैं उनके इधर? Write it in the chat box. Spring season haru. Then autumn को aki, correct. फिर summer को natsu और winter को full. ओके, सो अभी जूनीगात्सु में कौन सा सीजन रहेगा? जूनीगात्सु में कौन सा सीजन रहेगा? कैन यू गेस? फूयू, करेक्ट. ओके, तो या ये हो गए सीजन्स: हारू, नात्सु, आकी, फूयू. So now we'll move on to the last topic, which is colors. Sorry, yeah, colors. So ये है 12 basic colors. Okay, तो फर्स्ट वन इज आओ, नहीं तो आओई भी बोलते हैं इसको. ओके, आओई नहीं तो आओ, which is blue. Okay, write this in the notebook क्योंकि ये बहुत important है. So आओ. फिर रेड को बोलते हैं आका नहीं तो आकाई, आका नहीं तो आकाई. फिर व्हाइट को बोलते हैं शिरो, शिरो. फिर ब्लैक को बोलते हैं कुरो, कुरो. ओके, फिर ग्रीन को बोलते हैं मिदोरी, मिदोरी. ओके, और फिर ऑरेंज को बोलते हैं दाई दाईरो. या करेक्ट. शिरो इज ऑल्सो करेक्ट, शिरो भी करेक्ट है. कि आप इनके इधर किधर भी ये मतलब ई ऐड करोगे तो गलत नहीं होगा, बट पहले से ही ई ऐड रहेगा. जैसे कि मिदोरी में है तो फिर मिदोरी करके कुछ नहीं. ओके, वैसे ही दाई दाई इरोई नहीं रहता, सिर्फ दाई दाई इरोई रहता है. इरो इन इधर देखो, इरो रहता है ना, वो उसका मतलब रहता है कलर. ओके, तो इसलिए दाई दाई इरोई नहीं रहेगा, दाई दाई इरोई रहेगा. या यू कैन लीव, किसका भी अभी क्लास रहेगा नेक्स्ट तो वो लोग लीव कर सकते हैं. या सो ऑरेंज इज दाई दाई इरो. फिर रोज पिंक या पिंक को वो जनरली मोमोइरो बोलते हैं, मोमोइरो. फिर वायलेट को मुरासाकी, मुरासाकी. फिर येलो को किरो, कीरो, नॉट किरो, सॉरी, कीरो. फिर ब्राउन को चाइरो, चाइरो. फिर ग्रे को हाइरो, हाइरो. और डीप रेड को मक्का. सो ये वायलेट, डीप रेड, ग्रे को अगर याद नहीं रखा तभी भी चलेगा, बट बाकी के कलर्स याद रखो. इवन मोमोइरो को याद नहीं रखा तभी भी चलेगा. ठीक,
और ऑरेंज को दाई दाई इरो को छोड़ के ऑरेंजी भी बोलते हैं. ओके, ऑरेंजी. तो अगर आपको दाई दाई इरो याद करने में तकलीफ हो रहा रहेगा तो आप ऑरेंजी बोलोगे तभी भी सही है. ओके. सो ब्लू इज आओ, विथ आओ नहीं तो आओई. फिर रेड इज आका नहीं तो आकाई. व्हाइट इज शिरो नहीं तो शिरोई. पिंक को मोमोइरो ही बोलना रहेगा. यू कांट पिंक को नहीं बोल सकता. या तो शिरो नहीं तो शिरोई. ब्लैक को कुरो नहीं तो कुरोई. ग्रीन को मिदोरी. ऑरेंज को दाई दाई इरो नहीं तो ऑरेंजी. फिर पिंक इज मोमोइरो. मुरासाकी इज वायलेट. कीरो इज येलो. ब्राउन इज चाइरो. ग्रे इज हाइरो. एंड डीप रेड इज मक्का. और आपको ये शिरो भी याद रखना रहेगा तो उसका भी एक ट्रिक है. इनकेस आपने शिनचैन देखा रहेगा तो शिनचैन का डॉग का कलर कौन सा था? व्हाइट. तो उसको क्या बोलते थे? शिरो. आपको अगर याद करना रहेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक. सो इन वो शिनचैन में शिरो ऐसे ही उसका कलर के थ्रू ही वो ये हुआ, इसलिए उसको शिरो बोलते हैं. ठीक. तो आओ, आका, शिरो, कुरो, मिदोरी, दाइदाइरो, मोमोइरो, मुरासाकी, कीरो, चाइरो, हाइरो, मक्का. ओके, मक्का. ओके. सो is anyone interested in reading this? Yeah. Deepika, you can unmute yourself. ये फर्स्ट 4 कलर्स पढ़ो ब्लैक तक. Sir, या रीड द फर्स्ट 4 कलर्स. okay. Ao means blue, Akka means red, Shiro means white, and Kuro means black. करेक्ट. ये आओ, आका, शिरो करेक्ट था. वो क्यूरो नहीं है, कू है, कूरो. ओके, बाकी के परफेक्ट थे. आओ, आका, शिरो, कुरो. नाउ आदिति, you can unmute yourself. Read the second line. Midori is green. Daidairo or orangey is orange. Momori is rose pink. Murasaki is violet. या करेक्ट. सो सिर्फ ये म्यू नहीं है, मू है. ओके, मुरासाकी, मुरासाकी. और ये मोमो इरो है. ओके, बाकी के करेक्ट है. मिदोरी, दाइदा इरो या ऑरेंज करेक्ट. देन सॉरी, मोमो इरो और मुरासाकी करेक्ट. देन निधि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Kiro Read. means yellow. Chairo means light brown. Hairo means grey. Makka means deep red. Correct. Kiro is yellow, Chairo is brown, Hairo is grey, Makka is deep red. Okay. So Aoi, Akai, Shiroi, Kuroi, Midori, Daidairo nito orange, Momoiro, Murasaki, Kiro, Chairo, Hairo, Makka. Okay. So फिर अभी स्काई का कौन सा कलर रहता है? Write it in the chat box, everyone. आओ करेक्ट. फिर ग्रास का, ग्रास. अगर तकलीफ हो रहा रहेगा तो फिर मैं स्विच कर सकता हूँ इन केस यू डोंट. करेक्ट, मिदोरी. देन व्हाट अबाउट टी का, चाय. चाय का कलर क्या रहता है? चाइरो. करेक्ट. देन बुक के पेज का कलर क्या रहता है? शिरो. करेक्ट. देन जोकर के नाक का कलर क्या रहता है? आका नहीं तो आका है. करेक्ट. या so even Makka is correct but Akka is more correct. Yeah, so Aoi, Akka, Shiro, Kuroi,
मिदोरी, दाइदाइरो, मोमोइरो, मुरासाकी, कीरो, चाइरो, हाइरो, माको। सो सब कलर्स नहीं याद रहेंगे तभी भी चलेगा, बट ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मिदोरी भी, और कीरो भी। ओके, सो ये एल दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के इतने याद नहीं रखे तभी भी चलेगा, बट प्लीज रिमेम्बर आओई, अकाई, शिरोई, कुरोई, मिदोरी और कीरो। ठीक। सो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर डेज ऑफ द वीक, फिर कल परसों को कैसे बोलते हैं वो, फिर मंथ, फिर सीजन, फिर कलर्स। ओके, सो आई थिंक that will be for today. Arigato gozaimasu. Sayonara. You may leave now. Sayonara. sayonara. Sayonara.